हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद, खुदा का कलाम जो जिंदा, मबस्सर, हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज, जो रूह और बंद बंद गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को जांचता है। तो हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआ करेंगे। आए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, इस लायक ना थे कि तू हमें अपना जिंदा कलाम बख्शता। तूने कलाम बख्शा इसलिए कि इस कलाम के वसीला से हम वो जिंदगी पाएं जो अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। तेरा शुक्र करते बहुत बड़े इस निजात के इंतजाम के लिए, कलाम को समझने की तौफीक अता करना। खुदावंद, यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। तो आज हम जैसे गुजरे दिन में कि कलीसिया जो तैयार हो रही है, खुदा का इंतज़ाम है, कलीसिया जो तैयार हो रही है, कलीसिया जो तैयार हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कलीसिया कहाँ तैयार हो रही है। चर्च ऑफ क्राइस्ट, चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ द होली गोस्ट। ये तीन नाम इसलिए लिए हैं कि खुदा ने कहा था, जाओ तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो। तमाम दुनिया में अंजील, तमाम दुनिया के लिए, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई के लिए, बौद्ध, जितनी भी कौमें, जातियां यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये अंजील सब के लिए है। क्यों? अंजील है खुदा के रूह के लिए। पहला पत्रस, पहला बाब, 9वीं आयत। हमारे ईमान का मकसद रूहों की नजात है, तमाम बनी नौ इंसान में हर एक के अंदर खुदावंद की रूह है। रोमियो 8 बाब और उसकी 9 आयत, इसमें लिखा है, तुम जिस्मानी नहीं हो, तुम रूहानी हो, बशर्तिया के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। इसलिए बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो उनको जो अंजील को सुने। अंजील हर एक के लिए है।
ہر ایک کے لیے ہے انجیل۔ بہت لوگوں نے میرے سے سوال کیا، کہتے تو آپ کرسچن ہو؟ جی ہاں۔ کرسچن کا مطلب عیسائی نہیں ہوتا، کرسچن کا مطلب یہودی نہیں ہوتا، کرسچن کا مطلب ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں ہوتا، کرسچن کا مطلب ہوتا ہے جو ان کرائسٹ روح میں رہتا ہے۔ ہر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے، گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ جسم کا، ایک گناہ روح کا۔ میری بات دھیان سے سن رہے ہو؟ ایک گناہ جو روح کا گناہ کہتے ہیں، ایک گناہ جس کو جسم کا گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت، ویجز آف سن از ڈیتھ۔ تو اس کا مطلب ایک جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس میں خدا کی روح آتی ہے، تو روح جب آتی ہے تو اس بچے کا جنم ہوتا ہے، جسم یہاں سے بنتا ہے، جسم سے روح وہاں سے آتی ہے جو مالک خدا ہے روحوں کا۔ تو اس میں لکھا ہے یہ جو جسم پاپ کرتا ہے، ایک روح پاپ کرتا ہے۔ جب جسم تیار ہوتا ہے سن لیس، جب روح آتی ہے تو وہ بھی سن لیس ہوتی ہے۔ جب روح اور جسم دونوں ایک ہوتے ہیں قدرت خدا کی مرضی سے، تب جب جسم تیار ہوتا ہے، روح تیار ہوتی نہیں، روح تیار ہوتی ہے جو اوپر سے آتی ہے تو بچہ جنم لیتا۔ اگر روح نہ جسم میں آئے تو جنم نہیں ہو سکتا۔ جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اس لیے جب جنم ہوتا ہے نا تو پاپ میں ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اس جہان میں بحر و بحر نہیں کیا۔ جو کہتے ہیں نا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ سچائی یہ ہے ہر ایک پیدا جو ہوتا ہے تو گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ بہت بار چیلنج ہوا، مجھے کچھ کہتے ہیں آپ بہت ساری کتابیں کیوں رکھتے ہیں؟ کسی نے مجھے کہا لکھا ہے دیوی دیوتوں کا تو نام نہیں لینا چاہیے، تو آپ نام بھی لینا چھوڑو، آپ نے کتابیں رکھی ہیں۔ جی ہاں، میں نے کتابیں رکھی ہیں۔ کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کتاب وہ ہوتی ہے آتمک یا روحانی جس میں ذکر خدا ہوتا ہے، ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو انسان کی عقل دانائی سے لکھی جاتی ہے۔ ایک قانون قاعدے وہ ہیں نماز کے، پرارتھنا کے، پریئر کے، جو خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کے دیے ہوئے نہیں، وہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیں۔ پانی میں پوجا کرنا، پہاڑوں پہ ردھی ندھی سدھی یہ سب کرنے، بہت کچھ کرتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھو
اس لیے کسی شاعر نے کہا، مجھے بھی بہت پسند آیا، جہاں ذکر مسیح ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، کیونکہ حبیب اور محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے، محبوب خدا۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اس کی چوکھٹ سے مانگنے والا، بتاؤ کون کہتا ہے کہ وہ غریب ہوتا ہے؟ جسے چاہا اسے نواز دیا۔ یہ اپنا 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 کہتے نصیب، وہ جو نصیب ہے نا، اسی کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ آخری، میرا منہ لیا چومے، میرا منہ لیا چومے روح ابی نے۔ کب لیا میں نے؟ جس وقت نام مسیح، تو جس جگہ اس کا نام، جس جگہ اس کی سچائی، جس جگہ وہ سچ ہے، وہ کسی بھی کتاب میں ہو، میں اس کو پیار کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ تو اس لیے جہاں میرے مکتی داتا، نجات دہندہ، چھٹکارا دینے والا، اوتارا، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، ایک ہی رہے گا۔ اس لیے میں سب اس کتاب کو پیار کرتا ہوں جس میں ذکر خدا ہوتا ہے۔ میں اس کتاب کو پیار کرتا ہوں جس میں ذکر مسیح ہوتا ہے۔ تو میں کروں گا، کرتا رہوں گا۔ اس لیے آپ آج کلیسیا کے لیے، کل بولا ایک پردے میں، تو آج ہے دوسرا پردہ۔ کتنا؟ دوسرا پردہ۔ یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو ہم پڑھیں گے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، تھوڑا دھیان سے سنیں۔ اس کا دوسرا باب، اس کی 5 اور 6 آیت۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فجر ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہاللیلویا۔ پھر سے دھیان سے سنیے، ہر ایک الفاظ کو، ہر ایک لفظ کو تلاوت، جب تلاوت ہوتی ہے، جو کلام ہوتا ہے نا، تلاوت ہوتی ہے نا، وہ سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، مگر جو سمجھتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں۔ پھر سے یہ ایک پڑھیں گے۔ جب قصوروں کے سبب سے، جب
कसूरों की वजह से इस दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी फरेब नहीं किया, मैंने कभी धोखा नहीं दिया, मैंने कभी नफरत नहीं कही, मैंने कभी झगड़ा नहीं। कोई कह सकता ही नहीं। जो कहते हैं हम नशेबाज नहीं, सबसे बड़ा जो नशा होता है, सारे नशे जितने होते हैं, कितने नशे होते हैं ये काउंटलेस है, जिक्र नहीं, हम गिनती नहीं कर सकते, लातादाद है। सबसे बड़ा नशा जो है वो सबसे बड़ा दौलत का नशा होता है। यीशु मसीह ने कहा, दो मालिकों की सेवा तुम नहीं कर सकते, एक मैं मालिक हूं, दूसरी दौलत मालिक है। तो बताओ बताओ क्या बताओगे? कुछ भी नहीं। कसूरों पापों की वजह से हम मुर्दा थे और तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। ध्यान से सुनो, मसीह के साथ जिंदा किया, 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 जिंदा किया। ध्यान से सुनो, पौलुस ने कहा, मुझे जो मैं गुनाहों पापों की वजह से मरा हुआ था, तो यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया और यीशु मसीह के साथ मैं जी उठा। जो यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं उस पर मौत का असर भी नहीं, मौत का वश भी नहीं। यहां तक लिखा है उस पर गुनाह भी हुकूमत नहीं कर सकता जो यीशु मसीह के साथ जी उठा और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया। ध्यान से सुनो, यशाया 53 बाब उसकी 10 आयत, उसमें लिखा है कैसे जिंदा किया। यीशु मसीह के साथ दफन हुए, यीशु मसीह के साथ जिंदा हुए। पहले यीशु मसीह के साथ दफन हुए, फिर हम यीशु मसीह के साथ जिंदा हुए। तो इस आयत को ध्यान से सुनिए। लेकिन खुदावंद को पसंद आया, खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के जब लिए, उसकी जान, रूह नहीं, जान, गुनाह की कुर्बानी के लिए। मैं सवाल कर रहा हूं, जान की कुर्बानी दी खुदा ने कि रूह की कुर्बानी दी खुदा ने? रूह कभी कुर्बान नहीं होता, होता है तो जान होती है। जान, तू खून मत खाना, खून में जान होती है। 1 कुरिन्थियों 15:50 मांस और लहू आसमान की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। इसलिए जान तो लिखा है कि उसने हमारे लिए जान दे दी। क्यों? गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। हालेलुया।
तो वो अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, सीड, औलाद, दौलत, बच्चे, लिखा है जब यीशु मसीह ने जान दी तो उसमें से जन्म हुआ। तो किसका जन्म हुआ? पौलुस ने कहा मैं जिंदा नहीं हूं, मुझ में मसीह जिंदा है। मैं जिंदा नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है। और उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ से पूरी खुदा की मर्जी उसके हाथ से पूरी हुई। आज तक किसी आदमी के हाथ से, आदम से लेकर आज तक और हमेशा तक, अगर कोई मर्जी खुदा की पूरी करेगा या कर सकता है तो खुदावन यीशु मसीह कर सकता है, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। जिसने पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया हो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। तो इसलिए फिर हम वही आयत पढ़ेंगे, इफिसियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत। अब हम 6ठी आयत को पढ़ेंगे, 6वीं आयत को। और मसीह यीशु में शामिल करके, उसने मसीह यीशु में शामिल करके हमें उसके साथ जिलाया, उसी के साथ जलाया। एकदम एक मिनट मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके मन में सवाल रहेगा हम कब जिंदा हुए? हाँ, जो कोई यीशु मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेता है, रोमियो की पत्री में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेता है तो वो मसीह यीशु की मौत का बपतिस्मा लेते हैं। जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने के वक्त दोनों हाथ जोड़कर अपने आप को खुदा के रसूल के हाथ में दे देते हैं। तो जब रसूल के हाथ में दे देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हम पानी में दफन हो जाते हैं। तो जब हम जिंदा होते पानी से ऊपर आते हैं तो फिर हम नहीं आते, हम पानी में मसीह यीशु की मौत के वसीला से हम उसमें दफन हो जाते हैं। तब हम जो पानी से ऊपर आते हैं तो फिर हम नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं, जिंदा हो जाते हैं। और आसमानी मकामों जब मसीह यीशु के साथ हमें जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, तो उसके साथ आसमानी मकामों में, आसमानी मकामों में बिठाया, मकाम में नहीं, मकाम में नहीं, मकामों में बिठाया। कुलसियों 3 बाब 3 आयत से हम पढ़ेंगे, आसमानी मकामों में बिठाया। ये दूसरा पर्दा है। पहला, जब तौबा करते बपतिस्मा लेते हैं तो हम रूल कुद्दस के वसीला से कलीसिया में दाखिल होते हैं। तो कलीसिया के अंदर हम तैयार होते हैं। कलीसिया एक वो है जो जिस्म के हिसाब से जो कलीसिया में शामिल होते हैं, तो उसके लिए लिखा है कि कलीसिया में जो शामिल होते हैं वो मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बैठते हैं।
पहला सैमुएल, दूसरा अबाब, तो उसमें भी लिखा है कहाँ हम बैठते हैं, आसमानी मुकामों में। ये दूसरा पर्दा है। कलीसिया का बदन जो है, ये पहला पर्दा, जो दूसरा पर्दा है वो आसमानी मुकाम है। मकाम नहीं, एक नहीं, मकामों में रहते हैं हम। वो गरीब को खाक पर से उठाता, वो गरीब को खाक पर से उठाता है और कंगाल को घूरे में से निकालता है। कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ शहजादों के साथ बिठाए। अब हम आसमानी मुकामों में हैं और शहजादों के साथ बैठे हैं, तो हम बन रहे हैं। आप सुनोगे तो फिर एक दो आयतें और पढ़ो। मुकाशफा, प्रकाश की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, 21वां बाब, उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। हालेलुया। ये दूसरा पर्दा है। दूसरा, हम यहां से नहीं ऊपर को जाएंगे, हम ऊपर से नीचे को आएंगे। ये दो हिस्से होंगे। एक वो जो आसमानी मुकामों में है, पहले पहुंचे हुए, वो यीशु मसीह के साथ आएंगे। उसको शहरे मुकद्दस बोला है, नया यरूशलेम बोला है। तो हम जो यहाँ जिंदा होंगे इस जिस्म में, उस वक्त हम बादलों पे उठाए जाएंगे। तो बादलों पे उठाए जाएंगे हम, तो एक ऊपर से आएगा शहर मुकद्दस, तो हम मिल करके एक हो जाएंगे। तो वो जिसको यीशु बनाने को गया है, वो आसमानी मुकामों में क्या है? मैं जा रहा हूं आपके लिए शहरे मुकद्दस यरूशलेम को बनाने के लिए, सिय्योन को बनाने के लिए। जब मैं आऊंगा तो आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे। कहाँ? मैं जय प्राप्त करके, विक्ट्री हासिल करके, फतह हासिल करके अपने बाप के तख्त पर बैठा, और जो फतह याब होंगे, फतह पाएंगे, वो भी मेरे साथ मेरे बाप के तख्ते नशीन होंगे। बस ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि हम जो दूसरा पर्दा जिसमें हम बन रहे हैं, वो उसको यीशु मसीह बनाने को गया है। तो हम आसमानी मुकामों में बन रहे हैं। आसमानी मुकामों में ना सर्दी है ना गर्मी, आसमानी मकामों में ना भूख है ना प्यास। आसमानी मकामों में हम बन रहे हैं, बन
چکے نہیں، بن رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ تو کیسے کیسے بنو گے، کیسے کیسے بنو گے؟ کلیسیائیں 7 نمبر دیا گیا کلیسیا کو، 12 نمبر دیا گیا کلیسیا کو، 1,44,000 نمبر دیا گیا سیون کو، 12 نمبر دیا گیا یروشلم کو۔ اسی طرح یہ جو کلیسیا کمپلیٹ ہوگی، ریڈی ہوگی، تیار ہوگی، تو بتاؤ ویسے نہیں ہوگی، وچن کو پورا کریں گے۔ دھیان سے سنو، کلیسیا ہوگی ایک پردے میں، پھر دوسرے پردے میں رکھا جائے گا کلیسیا کو، اس کے بعد 5 پردے اور ہیں، 5 پردے اور ہیں۔ تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بے درجہ، درجہ بے درجہ، دوسرا کرنتھیوں 3 باب 18 آیت، اس میں لکھا ہے درجہ بہ درجہ، چینج ٹو چینج۔ پڑھیے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے، جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے روح خدا سے، رول قدس سے، جو روح ہے، رول قدس سے یعنی جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت، اسی تیجسوی روپ، اسی جلالی صورت میں درجہ با درجہ درجہ بے درجہ بدلتے جاتے ہیں۔ 7 درجے ہوں گے، 7 پردے ہوں گے۔ تو کتنی کلیسیا قیمتی ہے جو اٹھائی جائے گی۔ آپ یاد رکھو، اس وقت کرونا وائرس جو بہت، جس سے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے بادشاہ ڈر رہے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں اسی 20 سن میں ختم ہو جائے گی، تو کچھ کہتے ہیں نہیں، 1 سال پورا اور لگے گا، 21 جون مہینے تک یہ ختم ہوگی۔ عزیزو، یہ سب چیزیں قدرت خدا کے ہاتھ میں ہیں سب۔ جب آپ دعا کرو گے، آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو گے، جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے، جب آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو گے، داؤد کے زمانے میں بھی وبا جو مری وہ رک گئی تھی، جو 3 دن کو رہنا تھا اس کو، مری کو، تو وہ چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ تو جب آپ مان لو گے اپنے گناہوں کو، اقرار کرو گے ان کا، تو یہ وبا ٹل جائے گی، مٹ جائے گی، چلی جائے گی، ڈر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کلیسیا
जो कलीसिया में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर पाताल के फाटकों का भी कोई असर नहीं होगा। ईमानदारों, होशियार हो जाओ, तेरे दाहिने हाथ बाएं हाथ 1000, दाहिने 10,000 इस वबा के शिकार होकर मर जाएंगे, मगर ये वबा जो मसीह यीशु में है, जो उस पर्दे में बन रहे हैं, किसी को ये वबा टच नहीं कर सकेगी। आंखें बंद करो, दुआ करो। खुदावन तेरे बहुत बड़े फजल के लिए बहुत नहायत शुक्रगुजार हैं। तू हमें उस पर्दे में बना रहा है जहां पाताल के फाटक गालिब नहीं हो सकते, जिस पे मौत का भी कोई असर नहीं हो सकता। हर एक मुसीबत के वक्त खुदा तेरा मुहाफिज होगा। हर काल के वक्त तू शेर असुदा रहेगा। ऐसा ही हो खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। पूरी दुनिया में एक भी कलीसिया का अंग हिस्सा नहीं हो सकता जिस पे वबा असर करे, नहीं हो सकता। इस तेरे बड़े इंतजाम के लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार है खुदावन। दुआ करते हैं तमाम दुनिया के लिए, दुआ करते हैं बादशाहों के लिए, दुआ करते हैं हर एक मंत्री, हर एक इंतजामिया, हर एक सफाई कर्मचारी, हर एक डॉक्टर, सब लोगों को तेरे हाथ में देते हैं। सबको बचा ले और विश्वास दे और तौबा की तौफीक अता कर। तौबा की तौफीक भी मुकद्दर से है मिलती, और ये बख्शिश भी आखिरी खुदावन तेरे ही दर से मिलती। ऐसा फजल कर, सबको बचा ले प्रभु यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों मुकद्दसों के साथ होती रहे, आमीन।